subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, good afternoon. Today is Buddha Purnima. We must dedicate and surrender this class at the feet of that greatest healer of man's every sorrow, every suffering, as one of the greatest enlightened souls who have faced this earth. Our 1001 salutations at his feet. Okay, but I must express my regret. I must say sorry because today I was acting like a carpenter who starts quarreling with his tools. Really, you know what happened? I fell victim of a temptation to sum up the teachings inherent, the message inherent in three great books of our time. The Power of Now, Stillness Speaks, and A Better World. These are the three books written by Eckhart Tolle, as one of the great mystic and a spiritual teacher of our time. So I got tempted because this poem, Dust of Snow, aptly reflects all his teachings just in two stanzas. But it is simply impossible for a layman like me. It needs erudition, pandit, scholarly erudition on the part of the teacher, and unfortunately I don't have that. Anyway, I will make that poem very easy for you. Today I won't disappoint you. Now look at the question. My question is a very simple one. What is the underlying message of the poem Dust of Snow? What are the lessons one can learn from the poem Dust of Snow? Well friends, if one is ready to learn, the poem has got a lot of great lessons of life. The first one is, nothing is good or bad. Nothing is beautiful or ugly. It is our thinking that labels things of soul. Nothing is profane, nothing is unholy. Each fragment is his fragment. Each moment is his moment. I repeat that this lesson, this poem teaches us nothing is bad or good. Nothing is beautiful or ugly. Beauty lies in the eyes of the beholder. Beauty lies in the eyes of the beholder. I'll explain all these things after making this poem easy for you. I'll explain all the words, all the phrases,
all the lines I'm speaking, I would speak during the course of my teaching. कि beauty lies in the eyes of the beholder. Now look here. Usually poets choose, take help of trees like people, trees like oak, trees like fir to express their emotions, ideas, feelings, great philosophies of life. But in this poem, Robert Frost had chosen a hemlock tree. A hemlock tree is a poisonous tree. One relates this tree with omen. One relates this tree with sadness. Again, you see that poets choose birds like nightingale, birds like parrot, birds like peacock as symbols to express their emotions, to express their feelings. But in this poem, Robert Frost had chosen a crow. It's caw, its cawing sounds very harsh. But look here, Robert Frost, if Gautam Buddha got his enlightenment, if Gautam Buddha got enlightened under a peepal tree, Robert Frost got enlightened under a hemlock tree. Dear friends, each fragment of nature is equally sacred. Each moment of nature is equally sacred. You have seen the poet was sitting under a hemlock tree, full of negativities, full of complaints, sad, gloomy, depressed. And a crow sitting on the tree shook it and made a shower of snow fall on it. And suddenly, what happened? As I told you yesterday, you may have seen this kind of scene during the rainy season. The moon gets covered by dark clouds, and suddenly those clouds move away and the moon starts shining in her full glory. So that kind of thing happened with Robert Frost. He was greatly depressed, full of regrets, and this simple natural happening made him feel elated. He did not remain the same human being he was before that moment. So, my dear friends, this lesson teaches us that nothing is good or bad, nothing is big or small, nothing is beautiful or ugly. It is our thinking that labels things up. So, the first lesson one can learn from this poem. But we are often obsessed with the idea of great things, great achievements, but
We ignorant people fail to see that what is a great achievement? Nothing but an accumulated manifestation of a small efforts. What is a magnificent palace? Nothing but an accumulated manifestation of millions of bricks. So what matters in life is movement, particle. So this is the first lesson, that nothing is beautiful or ugly, nothing is big or small, and everything in nature has got its value and place. While teaching, we need a needle, a simple needle, a sword of gold. We don't need that talwar of sone ki talwar. We need a simple needle. Now, my dear friends, the second lesson. The message of this poem is complicated, short, multi-layered. So the second lesson this lesson teaches us is Mother Nature nourishes us. Mother Nature sustains us. But our hectic way of living, our unbridled desire, our unbridled passion for material wealth have made us ungrateful to Mother Nature. She not only nourishes us, she sustains us, and she is ever ready to heal up all our ghav, all our dukh, all our pira. We spend a few minutes of our time in her lab. So the second lesson, you see, all the things that made Robert Frost happy, all the things that destroyed his unhappiness, sorrow, regrets, are fragments of nature. So the second lesson this poem teaches us is nature is a great healer. Mother Nature has the power of healing up all our wounds, all our dukh, all our ghav, all our pira. But we are ungrateful creatures. And the third lesson is be alert. Be alert. What? Something could happen at any moment. Be alert. Something could happen at any moment. But what happens? This poem teaches us the great lesson of moment to moment live. This lesson teaches us the power of here and now. Life is in the present. Life is here and now. But we are neighbored here and now.
We are either in the past or in the future. Something could happen at any moment. Now look here. The moment before Robert Frost became happy, elated, got his freedom from sorrow. The moment before he was sad. So something could happen at any moment. Now let me conclude the teachings, the lessons, the underlying message of this poem in Hindi, my dear friends. देखो इस कविता में 3 बातें। पहली बात क्या है कि कोई चीज न सुंदर है न कुरूप है। सौंदर्य देखने वाले की आंख में होता है, उसके हृदय में होता है। वस्तु सुंदर नहीं होती है, व्यक्ति सुंदर नहीं होता है। जब तुम कहते हो कि यह वस्तु कुरूप है तो तुम अपनी कुरूपता को प्रक्षेपित कर रहे हो। ब्यूटी, लुक हियर, ब्यूटी lies in the eyes. Beauty lies in the eyes of the beholder. Beauty lies in the eyes of the beholder. So that's the first lesson. देखो, कवि सामान्यतया अपनी भावनाओं, अपने द्वारा व्यक्त किए जाने वाले सत्य की अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रतीक चुनते हैं? मोर, तोता, नाइटिंगेल, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, आम का वृक्ष, ओक। लेकिन यहां पर देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर ने कैसे प्रतीकों का चयन किया। तो कौवा, whose calling sounds very harsh, calm, a hamlet. But that Robert Frost got enlightenment, became happy, became elated under that tree. So a hemlock tree as sacred as a people tree. And so that's the first lesson. Second lesson कि प्रकृति, देखो जितने कंपोनेंट्स उन्होंने चुने हैं वो सब क्या है? नेचुरल कंपोनेंट्स है, नेचर के पार्ट्स। तो मां प्रकृति भरण पोषण करती है, जीवन देती है, लेकिन हमारा जो हेक्टिक शेड्यूल है, पागलपन जो है, फेवरिस लाइफ स्टाइल, ऑब्सेशन विथ ग्रेट, ऑब्सेशन विथ ग्रेट, तो क्या है कि हमारे पास प्रकृति के सानिध्य में बिताने के लिए कोई समय, अन्यथा प्रकृति की सानिध्य, प्रकृति में यह क्षमता है कि हमारे सारे दुखों को हर समय। और तुमको 2 एग्जाम्पल दिए कि सोने के किसी तलवार का अपना गौरव, अपनी महिमा, लेकिन पृथ्वी पर जो ये अरबों लोग हैं उनके वस्त्र सुई से सिले जाते हैं। सुई का अपना महत्व और तलवार का अपना महत्व। और दूसरी बात देखो कि हमारा जो ऑब्सेशन है, कल तुमको बताए थे कि बहुत बातें भूल जाता हूं, नहीं याद रहता है। एक ग्रेट हैपनिंग, ग्रेट अचीवमेंट क्या है? वो सम्मिलित होने के बाद अभी स्मॉल एफर्ट्स की अभिव्यक्ति है। एक बड़ा वैभवपूर्ण, बड़ा गौरवपूर्ण, बड़े सौंदर्य वाला विशाल महल क्या है? करोड़ों ईंटों का सम्मिलित प्रभाव है। ये छूट गया था पहले वाले लेसन के साथ। और तीसरी बात कल बताए थे
कि आवर ऑब्सेशन विथ great happenings, great achievements, etc. Never allow us to remain in the present of where life is. Life is here and now. तो क्या कहे तीसरा लेसन कि समथिंग कुड हैपन एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण यू मे बिकम एनलाइटेंड, सो बी अलर्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो हमारे सारे थॉट्स क्या हैं, या तो उसका रिश्ता पास्ट से है या फ्यूचर से. इसको अब थोड़ा सा सारे वर्ड्स तो नहीं याद है, फिर भी सारे वर्ड्स तुमको समझा देता हूं. एक शब्द देख रहे हो यहां, मिस्टिक, रहस्यदर्शी, सीयर, दृष्टा, रहस्य को देख लेने वाला, मिस्टिक. स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिट आध्यात्मिक गुरु, किससे बना? स्पिरिट से. स्पिरिचुअल टीचर गौतम बुद्धा, एकार्ट टोले. These teachers, these enlightened teachers, these enlightened souls can make you feel that you are beyond birth and death. It is true, fire cannot burn you, not this body. This body must be the subject of death, but your real being, your real Hona, your real I is beyond birth and death. And these spiritual masters can make you feel it, that you are beyond birth and death. That no fire can burn you, no sword can cut you, no water can make you drenched. A spiritual teacher, a spiritual master. Enlightenment, bodh, ज्ञान, enlightened, जितने जीसस क्राइस्ट हुए और बहुत गौतम बुद्ध हुए, भगवान महावीर, they were enlightened beings, they got enlightenment. ज्ञान की ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम enlightened souls कहते हैं, enlightened being कहते हैं. ठीक है. enlightenment, ज्ञान का दीप जल गया. enlightenment, हील माने भाड़ना, घाव का हीलर व्यापक अर्थ में. गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत बड़े फिजिशियन थे. कहा जाता है, व्यापक अर्थ है, व्यापक संदर्भ है कि आपके सारे दुखों से, उनकी देशनाओं में, शिक्षाओं में यह सामर्थ्य है कि आपको मुक्ति दे सकते हैं. ओमेन मतलब होता है OMEN, अपशगुन, बुरे साइंस. ओमेन, OMEN, ऊन, घाव. ठीक है. उसके बाद है ये थोड़ा सा बार बार जैसे हम बोले थे, और अभी ये समझाने से पहले यहां पे रुक रहा हूं, थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं. सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. आज 4 न्यूज़पेपर्स पढ़ा हूं, उसके आधार पर तुमको कह रहा हूं कि तुमको 4 महीने भी नहीं मिलने वाले हैं. तुमको 4 महीने भी नहीं मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है. तो इंग्लिश जैसे पेपर में पहले तो मेरा आग्रह रहता था, तुम सबों से कहते थे कि एक दिन में एक कंटेक्चुअल मीनिंग किया करो. लेकिन अब प्रार्थना है कि तुम एक दिन में 3 कंटेक्चुअल मीनिंग करो. और 50 बार बता चुका हूं कंटेक्चुअल मीनिंग की मीनिंग इन आइसोलेशन नहीं. अब हमने, अब जैसे यहां पे ठहरो, पहले जैसे लाई, तो लाई माने झूठ बोलना, तो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? लाई, लाइट, लाइट.
फिर लाई का एक मीनिंग होता है टू रिक्लाइन, लेटना, सोना, तो उसका हो जाता है लाई, ले। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाई, ले। यहां पे टू लाई का अर्थ लेटना, सोना, यहां यह लाई, दोनों का स्पेलिंग एक ही है, झूठ बोलना। और यहां जो तुम देख रहे हो सेकेंड फॉर्म, वो एक फर्स्ट फॉर्म में भी उसका उपयोग होता है, उसका अर्थ हो जाता है कि जैसे द हेन हैज लेड 4 eggs, अंडे ने 4 अंडा दिया है। राम बाबू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्कूल, ले। तो अब जब जैसे हमने लाई माने अवस्थित होना, जैसे हमने कहा कि हिज ग्रेटनेस, कल रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के संबंध में बोलने के समय बताए थे कि हिज ग्रेटनेस लाइज इन चूजिंग ऑर्डिनरी हैपनिंग्स, पेटी हैपनिंग्स, ऑर्डिनरी थिंग्स, सिंपल थिंग्स टू एक्सप्रेस ग्रेट आइडिया। तो यह हुआ कि आप उस शब्द के कंटेक्चुअल मीनिंग से परिचित हुए। और यहां एक फ्रेज है लेक्सिकल, तो मैंने तुमसे बताया था लेक्सिकल मीनिंग, शब्दकोशीय अर्थ, कि यूजुअली वर्ड्स लूज देयर लेक्सिकल मीनिंग्स इन पोएम्स। सामान्यतया कविता में शब्द अपने शब्दकोशीय अर्थ को का परित्याग कर देते हैं। दे क्वाइट स्पेशल मीनिंग। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चू। अब इस पंक्ति में पानी वह पानी नहीं दैट क्वेंचेज आवर थर्स्ट, जो हमारी प्यास बुझाता है, वह पानी नहीं वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल, हम अपने जीवित रहने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए, वह पानी नहीं। वह व्यापक अर्थ में पानी का उपयोग हुआ। फिर हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को एक समर्पित किया था एक कविता कि रख मेरा पानी तेरे काम आए, तेरा पानी मेरे काम आए, ये जंग भी जीत जाएंगे लोग। वहां पे पानी का क्या तात्पर्य था कि तू अपनी आंखों को, मेरी आंखों, करुणा, प्रेम, मनुष्यता, परमुख कातरता। तो कहने का मतलब कि अब जैसे लेक्सिकल मीनिंग हम बोलना जान गए कि शब्दकोशीय अर्थ, और किसी संदर्भ में अगर हमको इसका प्रयोग करना नहीं आया तो वह लर्निंग झूठी लर्निंग। फिर से बता दूं कि फेयर कॉपी बनाना शुरू कर ही दिए हो, और एक कॉपी अलग से ले लो कंटेक्चुअल मीनिंग के लिए। एवरीडे किसी भी लेसन से अपनी रुचि से 3 शब्द या 3 मुहावरा के अराउंड कंटेक्चुअल। खैर यहां तक आ गया था, लेट तक। टू एल्योर, टू टेम्प्ट, मतलब किसी बात के लिए किसी के मन में, किसी वस्तु के लिए किसी के मन में वासना जगा देना, लोभ जगा देना, लालच जगा देना। टू टेम्प्ट, और फिर विक्टिम ऑफ अ टेम्पटेशन। अभी मैं बताया था कि कल मेरे मन में एक लोभ, लालसा, वासना आ गई कि आज मैं इन बच्चों को एखार्ट टोले के 3 बुक के सार को समझा ही देता हूं। और मेरी वो वासना, मेरी वो आकांक्षा कोई गलत नहीं थी, और मैं थोड़ा सा बेईमान हो रहा हूं क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर की जो ये 2 कविताएं हैं, एक एक उपनिषद के समान है। उस 3 किताबों के सार को यह कविता इतने सुंदर ढंग से प्रक्षेपित कर रही है। But I don't have that erudition, scholarly erudition, and you don't have attained that age to feel the message of Eckhart Tolle, to feel the message of the power of now, to feel the message of stillness speaks, to feel the message of. So I was behaving like a carpenter who starts quarreling with tools study. Sorry. Anyway, तो उसी से
टू टेम्प्ट से नाम क्या बन गया? लोभ लालच वासना, टेम्पटेशन। एल्योर से क्या बन गया? लोभ लालच वासना, एल्योर में। उसके बाद यहां एक लाइन है, याद कर लो। ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग के लिए, और ऐसे ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सरमन एट बनारस, मैडम राइट्स द बस, कि हम लोग इस उम्र में भी उसका एक सारगर्भित उत्तर लिखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो ये सब जो 2-3 पंक्ति हैं इस कविता से रिलेटेड थी, इसको याद कर लेना। क्योंकि यहां पूरा नहीं लिखा, मेरी गलती है, लेकिन तुम याद कर लो। ये तो तुमको वीडियो में आएगा है कि ब्यूटी लाइज, फिर यहां पे देखो ब्यूटी लाइज अवस्थित होता है, रहता है। ये ब्यूटी, हाँ ये वाला लाइन, ये नहीं लाई झूठ बोलना नहीं। ब्यूटी लाइज अवस्थित होता है, अंतर्निहित होता है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द, देखने वाला, beholder. Beauty lies in the eyes of the beholder. Beauty is not just a skin deep. अरे चमड़ी देख करके किसी को कहते हो कि ये किसी को चमड़ी को छील दो, जैसे केले को सोह देते हो। तो कौन? वो मिस फ्रांस, और कौन? कोनो गांव का नाम ले लेते हैं, मिस कपड़थोड़ा, वो सब बाहरी बातें हैं, ठीक है। तो ब्यूटी इज नॉट जस्ट स्किन डीप। अरे ब्यूटी का रिश्ता और गहराई में सोल तक जाता है। कितने भी मतलब चकाचौंध करने वाला सौंदर्य हो, और उस देह में अगर मनुष्यता नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, पर दुख कातरता नहीं है, तो उस त्वचा के सौंदर्य का कोई मोल नहीं है। माफ कर देना, थोड़ा फॉर्म में है। एक बड़ा अच्छा एनेक्डोट बता रहा हूं तुमसे। फर्ज करो कि एक अति आधुनिका स्त्री, गौरवर्ण, बहुत कीमती कार, और एक आदिवासी मां, आधा अधूरा वस्त्र, फटा चिटा वस्त्र। मान लो साउथ बिहार में किसी ओकेजन पे बहुत ह्यूज गैदरिंग है, और उस ह्यूज गैदरिंग में वो आंग्ल भाषी अति आधुनिका महिला अपने बच्चे को खो बैठी है। और संजोग ऐसा कि यह आदिवासी महिला भी अपने बच्चे को खो बैठी। लेकिन एक सुखद संजोग, उसकी कृपा कि 1 घंटे के बाद दोनों को अपना बच्चा मिल जाता है। तब जो दोनों की आंखों से आंसू की निर्झरणी बहेगी, भला उन आंसुओं को बांट सकोगे? यह आदिवासी आंसू और यह अति आधुनिक आंसू, सब साहित्य बड़ी चीज है। एनीवे, तो पहला था कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सौंदर्य वस्तु में नहीं, सौंदर्य व्यक्ति में नहीं, सौंदर्य देखने वाले के में होता है। ब्यूटी इज नॉट जस्ट स्किन डीप, ब्यूटी मस्ट टच वंस सोल। सोल से उद्भूत होना चाहिए। यहां है अपीयरेंसेस आर ऑफन, ये लाइन सुन लो, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। वो लिफाफा देख करके, पैकिंग देख करके मूल्यांकन मत किया करो, बाहर से कोई कैसा है। असल चीज है इंटरनल एट्रीब्यूट्स। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। ठग लेता है अपीयरेंस। यहां पर क्या, फेवरिस माने बड़ा एकदम फेवरिस, उत्ताप उत्तेजना से भरा हुआ। यहां है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन समझते हो कि वो भूत सवार हो जाना है, ही इज ऑब्सेस्ड।
देखो उस पर भूत सवार हो गया है, फितूर सवार हो गया है, तो पगला गया है उस बात को लेकर के। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड, वी आर सो लैडन, वी आर सो फेवरिस विद द आइडिया ऑफ ग्रेट थिंग्स। एंड यू नो द ट्रेजेडी बिटवीन द ग्रेट थिंग्स, between the great things you cannot do and the small things you will not like to do, you end up doing nothing. Between the great things you cannot do and the small things you will not like to do, you end up doing nothing. यही हम सब का हस्र है। तो वहां बताए थे we are so obsessed with the idea ग्रेट। दिस वर्ड ग्रेट इन्वर्टेड कॉमा में अगर ये लाइन का उपयोग करोगे तो ग्रेट को इन्वर्टेड एक कॉमा दे दोगे, डैश दे दोगे, फिर लिखोगे ग्रेट हैपनिंग, ग्रेट अचीवमेंट्स है। तो उसमें आया था मिस्टिक, या बता ही दिए थे लेक्सिकल मीनिंग, बता ही दिए थे शब्दकोशीय अर्थ, और ये क्या था लिटरेरी एक्सप्रेशन, साहित्यिक अभिव्यक्ति। ठीक है, अब थोड़ा अधिक हैमरिंग हो गई, क्षमा कर देना। काव्य चीज ही ऐसी है, और सच पूछो तो हमारे जैसे व्यक्ति में यह सामर्थ्य कहां कि यह जो दो स्टैंजा की जो ये छोटी छोटी कविता है, मुझे माफ कर देना, एक एक उपनिषद के समतुल्यांक। मैंने तुमसे बताया ना कि इस पहली कविता में उस ग्रेट मिस्टिक के 3 किताब के सार को इतने सुंदर ढंग से द पावर ऑफ नाउ, स्टिलनेस स्पीक्स अ बेटर वर्ड, इतनी किताबें हो जाएंगी। उसके सार को रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर ने एक 2 स्टैंजा की कविता, इसलिए हमारे इमोशनल हो जाने को माफ करना। और ये जो होमवर्क बताया, नोटबुक एकदम उसी के आधार पे तुम्हारा इवैल्यूएशन ग्रेडिंग होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, और एक अलग से कॉपी जिसमें 3 कंटेक्चुअल मीनिंग एवरीडे किया करो, आई वार्न यू। ठीक है, और ईश्वर ने चाहा तो कल इसी कवि की फायर एंड आइस कविता करेंगे, और घबराना नहीं। मतलब इसमें जो 3 दिन जो इसमें लगा, 3 क्लास हुआ, तो टाइम देखो ना। फर्स्ट जो था डस्ट ऑफ स्नो, उस दिन तो पोएट्री वगैरह के बारे में, लेक्सिकल मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, और फिर कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया। मूल उद्देश्य उस दिन यह था। कल एक छोटा सा क्लास हुआ, और इस कविता को अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर 15 क्लासेज और हूं तब भी इस कविता को अनावृत नहीं किया जा सकता है, मुझ में यह पात्रता नहीं है। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे कि फायर एंड आइस हम लोग करें, और तुम्हारे धैर्य को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी देर तक तुमने हमारे इस प्रलाप को सुना है।